पॉलिटी में पार्लियामेंट पढ़ेंगे, पूर्वावलोकन सीरीज। क्वेश्चन है कुछ इसके, लगभग कितने हैं, 93 हैं। चलिए कितने हो जाते हैं देख लें। व्हाट इज़ द मिनिमम एज लेट डाउन फॉर अ पर्सन टू सीक इलेक्शन टू लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 साल एज होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 84 सबसेक्शन बी, मिनिमम एज फॉर पर्सन सीकिंग इलेक्शन टू द काउंसिल ऑफ स्टेट इज 30 years and minimum age to elected as member of Lok Sabha is 25 years। तो हमको ये ध्यान रखना है। What is the minimum age for member of parliament? 25 year। In order to choose a member of Lok Sabha, a person must not be less than 25 year। Which one of following is not correct with regard to the election of Lok Sabha? किस में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, वो सब पढ़ने के पहले इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल एंड द लेजिस्लेटिव assemblies of states are held on the basis of adult suffrage, SUFFRAGE। Article 324 deals with the superintendence, direction and control of election to be vested in election commission. Thus statement is wrong as electoral rolls are prepared under the direction of election commission is given in article 324 subsection 1। Electoral rules are prepared under the direction of election commission as given in article 324 subsection 1। ठीक है, ये जो 300 वाले हैं आर्टिकल, ये थोड़ा देखें, एक नज़र मारते हैं इस पर। तीन सौ चौबीस की बात हुई थी, 326 की बात हुई थी। तो 324 से लेकर 329 ए इलेक्शन आते हैं 15 में, भाग 15 में इलेक्शन आता है। इसमें आर्टिकल कौन से हैं? 324 से लेकर के 329 ए तक, 324 से लेकर 329 ए तक भाग 15 इलेक्शन आता है। 324 से लेकर 329 ए इसके आर्टिकल इसमें आते हैं। For election to Lok Sabha, a nomination paper can be filled by any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency। The state-wise seat allocation in Lok Sabha is based on a number है population। ठीक है, according to Article 82 of the Constitution of India, the allocation of seats in Lok Sabha to seats on the basis of B 1971 सेंसस के आधार पे सीटों का निर्धारण होता है। ठीक है, द स्टेट वाइड एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोक सभा इज बेस्ड ऑन 1971 सेंसस अप टू विच ईयर दिस रिमेन इंटैक्ट। ये इंटैक्ट कब तक रहेगा? 2026 तक इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, 84th अमेंडमेंट एक्ट हैज़ फ्रोजन द total number of existing seats in Lok Sabha on basis of 1971 census। They shall remain unaltered till the first census to be taken after the year 2026। इसका आंसर है। The 84th Amendment Act 2001 made an amendment to Article 81 subsection 3 proviso that place of year 2000 in place of year 2000 the purpose of allocation of seats of the house pupil to any state 2026 should be the substituted and shall not be amended till 2026 and be construed as reference to 1971 census for allocation of seats of Lok Sabha। इसका मतलब ये है कि 84वां जो संविधान संशोधन हुआ 2001 में, उसके हिसाब से इसको जो 2000 में, मतलब सन 2000 में जो एक सीट का लोकेशन होता है पॉपुलेशन के आधार पर, उसको 2026 कर दिया गया है।
फिर क्वेश्चन वही पूछा है, द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर लोकसभा इज डन बाय डिलिमिटेशन कमीशन. दिस डिलिमिटेशन हैज बीन फ्रीज्ड टिल विच ईयर? 2026. Maximum strength of Lok Sabha has stipulated in the Constitution of India. D नंबर कह रहा है none of these. इसमें which of the following constitutional amendment is related to raising the number of members of Lok Sabha to be elected from the states? Which of the following constitutional amendments is related to raising the number of members of Lok Sabha to be elected from the state? 7th and 31st. 7वां और 31वां. The strength of Lok Sabha was increased from 525 to 545 through which amendment? A नंबर 31वां. इसमें जो लोकसभा की सीटें 525 से 545 कर दी गई, वो 31वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुआ था 1973 में. 15वां क्वेश्चन. चलो 15 तक आ गए. 93 क्वेश्चन टोटल है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा कैन बी सी 550 इसमें दिया हुआ है 2006 के क्वेश्चन में. करंट में पूछा गया है 543. चलो इसको पढ़ लेते हैं. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा कैन बी 550. कितने ज़्यादा हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं मैक्सिमम मेंबर ऑफ लोकसभा. कैसे? 530 हैं स्टेट से, 20 हैं यूनियन टेरिटरीज से, तो 530 और 20 जोड़ दो 550 हो गया. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 331 331 नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन Article 81 President, if he is of opinion that Anglo-Indian community is not adequately represented in Lok Sabha, could nominate not more than two members of that community into Lok Sabha. There are currently 543 members in Lok Sabha, 524 member from the state. ठीक है. 19 member from union territories. ठीक है, तो फिर 543 हो गए. इट इज़ noteworthy that arrangement of nominating two representative of Anglo-Indian community in Lok Sabha have not been extended beyond the stipulated date. 25 जनवरी 2020 में एक डेट थी, वहाँ तक ये करना था कि इन्हें 25 जनवरी 2020 तक एंग्लो इंडियन को आप सदस्यता दे सकते थे 2 लोगों को, लेकिन उन्होंने उस डेट को आगे बढ़ाया नहीं. तो ये अभी इस समय करंट में क्या है? 543 हैं, जिसमें 524 आते हैं स्टेट से, 19 आते हैं यूनियन टेरिटरीज से मेंबर. 543 सीटों में जो 19 सीटें हैं वो यूनियन टेरिटरीज आती हैं. व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज टू लोकसभा? आंसर है 20 ज़्यादा हो सकता है. अभी आ रही हैं फ़िलहाल 19, लेकिन 20 मैक्सिमम कर सकते हैं आप. जैसे मैंने बताया 550 सीटें हो सकती हैं, 530 प्लस 20. इस समय है 524 प्लस 19. ठीक, फिर देख लेते हैं आर्टिकल 81 क्या कहता है. कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल. इट रीड्स नॉट मोर देन 530 मेंबर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द स्टेट्स. Not more than 20 members to represent the union territories chosen in such manner as Parliament may by law provide. कितनी सीटें हैं जो यूटीज के लिए रिजर्व हैं? तो 20 सीटें हैं. जैसे दिल्ली से 7 हो गई, इस समय चल रही हैं 7.
19 है, तो कहाँ से कितनी आ रही हैं देखो। इस समय 19 सीटें चल रही हैं। दिल्ली में 7, हाँ 7 सीटों पर चुनाव हुआ था। अंडमान निकोबार की 1 हो गई, चंडीगढ़ की हो गई, दादरा नगर हवेली की 1 हो गई, दमन दीव की 2 हो गई, लक्षद्वीप की 1 हो गई, पुदुचेरी की 1 हो गई, जम्मू कश्मीर की 5 हो गई, लद्दाख की 1 हो गई। लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर वाला सिस्टम बदल गया ना, ये तो पुराना वाला चल रहा है। चलो आगे देखेंगे। इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन लोकसभा मेड? आर्टिकल 330। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन हाउस ऑफ पीपल लोकसभा में आर्टिकल 330 कहता है इस बारे में, रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। 331 किसके बारे में बात करता है? एग्लो इंडियन के बारे में बात करता है जो लोकसभा में रहते हैं। 332 किसके बारे में बात करता है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स। स्टेट में जो सीटें रिजर्व होती हैं SC ST की, उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 333 क्या कहता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो 330, 331, 330 हो गया SC ST का लोकसभा में, 331 वाला हो गया एंग्लो इंडियन वाला लोकसभा में। 332 आते हैं तो ये राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली में हो गया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन। 333 एंग्लो इंडियन आप यहाँ स्टेट में कर दो। शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन लोकसभा में नहीं है। किस स्टेट से नहीं है? केरला तमिलनाडु से नहीं है। चलो देख लेते हैं। टिल 2008। चलो यार क्वेश्चन पुराना है, इस पर बात नहीं करेंगे ज़्यादा। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा? 84। MPPC 2018 में पूछा गया। द नंबर ऑफ constituencies reserved for scheduled caste has been increased from 79 to 84 after the delimitation. Though the seats for scheduled caste, scheduled tribes are reserved in Lok Sabha, they are elected by all voters in constituencies without any separate electorate. ठीक है, 84 हैं। देखते हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। मध्य प्रदेश हैज़ रिजर्व मैक्सिमम 6 सीट फॉर शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन इन 2008. There are 4 reserved seats in state of Gujarat for scheduled tribe. Apart from these, Jharkhand and Odisha have 5 seats. झारखंड उड़ीसा में 5 हैं, गुजरात में 4 हैं, MP में 6 हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में 4 हैं। शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात हो रही है। एंड देयर इज नो सीट रिजर्व फॉर ST इन UP एंड बिहार में कोई सीटें रिजर्व नहीं, क्योंकि है ही नहीं ST। SC के लिए कितने रिजर्व हैं लोकसभा में? 84 रिजर्व। हम यहाँ ST वाली बात कर रहे थे कि MP में 6 हो गई, गुजरात में 4 हो गई, UP में नहीं है रिजर्व, बिहार में रिजर्व नहीं है, झारखंड और उड़ीसा में 5 हो गई। मतलब झारखंड और उड़ीसा में 5 का मतलब झारखंड में 5 है, उड़ीसा में 5 है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 4-4 हैं। तो सबसे ज़्यादा भी देखा जाए तो MP की बात हो रही है, MP में रिजर्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, प्रेसिडेंट होल्ड्स द पावर टू नॉमिनेट द एंग्लो इंडियन मेंबर्स इन लोकसभा। ठीक है, आर्टिकल 331 के हिसाब से। 28 क्वेश्चन हो गए, बचे कितने हैं? हाउ मेनी मेंबर्स मे बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम
एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, दो थे पहले। Before completing its term, the Lok Sabha can be dissolved. Answer by the President on the recommendation of Prime Minister. According to Article 85(2), 85 का subsection 2 फिर subsection B कह सकते हैं, जो भी है। The Lok Sabha may be dissolved before completion of its tenure period. The President exercise this power on recommendation of the Prime Minister or Council of Ministers। ठीक है, अब एक और देखते हैं। 85 एक सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers the president to summon each house of parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in next session. So the constitution provides for the maximum gap between two sessions of parliament, but there is no minimum gap. Hence statement 3 incorrect while 2 is wrong. Generally, how many sessions are there in Lok Sabha? 3 सेशन होते हैं जनरली। बजट सेशन होता है फरवरी से मई के बीच में, मानसून सेशन होता है जुलाई से अगस्त के बीच में, विंटर सेशन होता है नवंबर दिसंबर में। 3 सेशन हो गए। आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद सेशन। ये 80 वाले की बातें समझ चल रही है तो देख लेते हैं। यूनियन गवर्नमेंट आती है 5वें नंबर पे, तो इसमें 52 से लेकर 51 के बीच में आर्टिकल आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट आती है 6ठे नंबर पे, 152 से 237 के बीच में आते हैं। यूनियन टेरिटरीज आती है 8वें नंबर, मतलब भाग में बात हो रही है, ये आता है 239 से 242 के बीच में। पंचायत आती है 9 नंबर पे, 243 से 243 ओ, 243 से 243 ओ। म्यूनसिपैलिटीज़ आती है 9A में, 243 पी से 243 जेड जी तक, 243 पी से 243 पी से 243 जेड जी तक। कोऑपरेटिव सोसाइटी आते हैं 9B में, 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक, 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक, 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज 10वें नंबर पे आता है भाग में। 244 से लेकर 244 ए तक, 244 से लेकर 244 ए तक। यूनियन टेरिटरीज 8वें नंबर पे थी, 239 से 242। पंचायत 9 नंबर पे थी, तो 243 से 243 ओ। म्यूनसिपैलिटीज़ 9A में थी, 243 पी से 243 जेड जी तक, 243 पी से 243 जेड जी तक। और कोऑपरेटिव सोसाइटी थी 9B में, 243 जेड एस से लेकर 243 जेड टी तक। और शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज 10वें नंबर पे आ रहा है, 244 से 244 ए। तो वैसे हम बात कर रहे थे इसमें यूनियन गवर्नमेंट की 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल। ये सब यही सब बातें चल रही हैं। द सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ पीपल मे बी टर्मिनेटेड बाय डी एडजर्नमेंट, ऑल ऑफ एबव, मतलब एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, रिजोल्यूशन। ठीक है, द सिटिंग हाउस ऑफ पीपल मे बी terminated by way of adjournment, propagation and dissolution. Adjournment is done by speaker, of Lok Sabha, while propagation and dissolution is done by president under article 85 subsection 2। बहुत बढ़िया, ये यूपीपीसीएस में आया, पूछ लेगा कि एडजर्नमेंट कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। और प्रोपोगेशन नहीं यार, प्रोरोगेशन एंड
dissolution is done by president under the article 85 subsection 2. ये 35 नंबर तक के क्वेश्चन हो गए. Which of the following is authorized to prorogue the session of House of People? तो प्रेसिडेंट करता है इसको. The term Lok Sabha, C number, can be extended by 1 year at a time during the proclamation of emergency. में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं. According to the article 83(2) of Constitution, the House of People, unless sooner dissolved, shall continue for 5 years from the date of appointed for its first meeting, and no longer after expiration of said period of 5 years, provided that the said period may, while a proclamation of emergency is in operation, be extended by Parliament law for a period not exceeding 1 year at a time, and not exceeding, in case of beyond, a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate. इमरजेंसी को मिला के 1 साल के लिए कर दो, और प्रोक्लेमेशन में 6 महीने हैं. 6 महीने ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्रोक्लेमेशन में. प्रोक्लेमेशन का मतलब देख ही लेता हूँ. घोषणा लिखा हुआ है. प्रोरोगेशन क्या था? प्रोरोगेशन में विस्तार था. Session of Lok Sabha is called for at least, B number, 2 times in a year. कम से कम 2 बार बुलाना जरूरी है. What is the quorum of Lok Sabha in relation to its strength? D number, 1/10. Quorum is the minimum number of members required to be present in house before it can transact any business, as provided by Article 100 subsection 3. The quorum to constitute a meeting of either House of Parliament is 1/10 of the total number of members of the House. 1/10 मेंबर चाहिए चलाने के लिए लोकसभा को. What is the quorum of to constitute the meeting of Lok Sabha? B number, 1/10. हाँ, मीटिंग के लिए 1/10 हो गया. quorum फिर वही आ गया 1/10. लोकसभा राज्यसभा दोनों में बोल रहा है. विच स्टेट सेंड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा? सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं? यूपी से आते हैं. तो 80 आते हैं यूपी से, बिहार से 40, एमपी से 29, वेस्ट बंगाल से 42. रट लेते हैं इसको. यूपी से 80 आते हैं, महाराष्ट्र से 48 आते हैं, वेस्ट बंगाल से 42 आते हैं, बिहार से 40 आते हैं, तमिलनाडु से 39 आते हैं, एमपी से आते हैं 29. फिर चलते हैं उल्टा. एमपी से आते हैं 29, तमिलनाडु से आते हैं 39, बिहार से आते हैं 40, वेस्ट बंगाल से आते हैं 42, महाराष्ट्र से आते हैं 48, यूपी से आते हैं 80 सीटें. इन इंडिया विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा? यूपी है. इसमें कह रहा है आफ्टर उत्तर प्रदेश द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? महाराष्ट्र में 48. राजस्थान के लिए पूछा कितनी है? राजस्थान में 25 सीटें. याद करते चलो, सब पूछता है. देयर आर 25 सीट्स allocated for state of Rajasthan in Lok Sabha, out of which 4 seats are reserved for scheduled caste and 3 seats are scheduled tribe. 4 हैं SC के लिए, 3 हैं ST के लिए. कहाँ पे? राजस्थान में. हाउ मैनी लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तराखंड से कितने आते हैं? 5 आते हैं. बहुत कम आते हैं भाई.